Okay. See, today we are going to discuss about a new chapter that is known as mechanical properties of solids. So this is the chapter 8 of your class 11th physics. So first we need to understand what is the meaning of solids. You must have known that in your previous classes also you may differentiate between solid, liquid and gases, right? So what is the difference between solid and the rest two parts? Who can say? Or what is the difference between solid, liquid and gas? So definitely the first answer will come the intermolecular force, right? So in case of solid, the intermolecular force is very, very high as compared to liquid and gases. The intermolecular forces between the molecules of a gas is very, very less, and for the liquid it is in between solid and gas, right? So we are not going to discuss about the intermolecular forces or whatever the stuffs that we have in case of solids, but what we are going to discuss, the mechanical properties of the solids. So we will directly go by the syllabus. So the first term we need to understand is elasticity, and contrary to this we have another term that is known as plasticity. So how can we define and also differentiate between these two terms, right? Elasticity and plasticity, because the term itself defines. Elasticity means what? Elastic in nature, है कि नहीं? इलास्टिसिटी का नाम से ही पता चल रहा है कि ये इलास्टिक इन नेचर है. इलास्टिक का मतलब क्या है? लेट्स सपोज आई हैव ए rubber band. If I will stretch that rubber band and again if I will lose this rubber band, then it will again shrink to its initial shape, है कि नहीं? अगर मैं एक रबर बैंड को पकड़ूंगा, इसको खींच दूंगा, अभी अगर छोड़ दूंगा तो ये अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा कि नहीं? So this is known as what? Elasticity nature. Elasticity means what? It will again come back to its initial position. But instead of taking a rubber band, if I will take this plastic pen, if I will stretch this one, will it again come back to its initial position? No, because this material is having the plasticity nature. Which nature? Plasticity. So plasticity means what? Plasticity means it will never come back to its initial position. Just like we have a rubber band, we can take the example of rubber band. So रबर बैंड में क्या होगा? रबर बैंड को अगर लेट सपोज ये एक रबर बैंड है, इसको दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई किया गया, सो इट विल स्ट्रेच लाइक दिस, है कि नहीं? बट एट दिस पॉइंट इफ आई विल लूज दिस और इफ आई विल रिमूव दैट डिफॉर्मिंग फोर्स, और यू विल गेट टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. सो डिफॉर्मिंग फोर्स को जब निकाल दिया जाएगा, इट विल अगेन कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन. सो दिस इज नोन एज व्हाट? इलास्टिसिटी. And the body or the object which possesses elasticity is known as what? Elastic body. जो बॉडी के पास इलास्टिसिटी नेचर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इलास्टिक बॉडी. क्या बोलेंगे? इलास्टिक बॉडी. सिमिलरली मैं बोला था contrary to this we have another term that is known as what? Plasticity. अगर इलास्टिसिटी में अपना ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर पा रहा है, प्लास्टिसिटी में नहीं गेन कर पाएगा. समझ में आया कि नहीं? जस्ट लाइक वुड, ग्लास, वुड को अगर स्ट्रेच किया जाएगा तो डेफिनेटली इसका शेप चेंज तो होगा, डेफिनेटली होगा, बट विल इट अगेन कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन? नो. इफ इट इज नॉट कमिंग टू इट्स इनिशियल पोजीशन, दैट मीन्स द बॉडी इज हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी, नॉट इलास्टिसिटी. क्लियर है कि नहीं? So these are the examples: wood, glass, or what? Plastic. These are what? Paper. So all these are what? The examples of plasticity or plastic object. Now the second term is deforming force. Who can say what is deforming force? Deforming force means what? The meaning deform itself defines change. What?
change. Deforming force मतलब the force which is responsible for deform or which is responsible for change. तो जो अगर मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और उसी फोर्स के वजह से एक ऑब्जेक्ट का शेप में चेंज आ रहा है, दैट मीन्स दैट फोर्स इज नोन एज व्हाट? डिफॉर्मिंग फोर्स. प्रीवियसली आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ ए रबर बैंड. तो ये रबर बैंड को फोर्स अप्लाई किया गया दो साइड में, ये दो फोर्स अप्लाई, ये दो साइड में जो फोर्स अप्लाई किया गया है उसी फोर्स के वजह से ही इसका शेप चेंज हुआ कि नहीं, है कि नहीं? तो just because of this force the shape of the rubber band has changed, so this force will be known as what? Deforming force. Which force? Deforming force. देखो रबर बैंड को स्ट्रेच किया गया with the help of a deforming force. Now if I will remove the deforming force, that means इसको छोड़ दिया तो ये अपना ओरिजिनल पोजीशन में क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा कि नहीं? Now see, अगर इसका इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन ले जाने में अगर एक फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, एट द सेम टाइम इसका फाइनल से अगेन इनिशियल आने में भी एक फोर्स रेस्पॉन्सिबल होगा, है कि नहीं? अगर एक ऑब्जेक्ट को ए टू बी लेके जा रहा हूँ तो उसमें मैं वर्क डन किया हूँ, तो बी टू ए ले आने में भी तो वर्क डन करना पड़ेगा ना, अपने आप थोड़ी आ जाएगा, नहीं आएगा. तो सिमिलरली अगर इसका लेट सपोज ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, अगेन इसका ए पोजीशन है, तो ए पोजीशन से बी पोजीशन में लेके आया मतलब उसका स्टेट चेंज किया. स्टेट चेंज मतलब क्या? इसका शेप ऐसा था, ए शेप था, अब क्या हो गया? बी शेप हो गया. तो ए शेप से बी शेप लाने में मेरे को कुछ किसी का एक हेल्प लेना पड़ा कि नहीं? किसका? डिफॉर्मिंग फोर्स का. किसका? वाई डिफॉर्मिंग फोर्स? बिकॉज दिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द शेप, है कि नहीं? नाउ अगर ए से बी ले जाने में मेरे को डिफॉर्मिंग फोर्स का हेल्प लेना पड़ा और एक फोर्स इज इन्वॉल्व इन चेंजिंग द पोजीशन फ्रॉम ए टू बी, सिमिलरली फॉर चेंजिंग द पोजीशन फ्रॉम बी टू ए वी विल ऑल्सो रिक्वायर ए फोर्स, विल ऑल्सो रिक्वायर ए फोर्स. नाउ अब यहाँ से यहाँ लाने में अगर ये प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है तो हमको फोर्स का ज़रूरत नहीं होगा, वो अपने आप स्टोर होते जाएगा. कैसे? देखो मैं डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, अब डिफॉर्मिंग फोर्स को मैं जीरो कर दिया. जीरो कर दिया मतलब क्या है? ये फोर्स अब क्या हो चुका है? नील हो चुका है, जीरो हो चुका है. नाउ अब यहाँ से ये एक रबर बैंड आएगा कि नहीं? आया है. रबर बैंड का तो इलास्टिसिटी नेचर है ना, ये अपने आप कम बैक करेगा अपना इनिशियल पोजीशन में. नाउ यहाँ से यहाँ आने में भी एक फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, दैट फोर्स इज नोन एज व्हाट? रिस्टोरिंग फोर्स. कौन सा फोर्स है? रिस्टोरिंग फोर्स. सो सी, वी हैव टू keenly observe what are the terms that we are going to discuss or we are discussing. Deforming force मतलब इनिशियल से एक पोजीशन फाइनल पोजीशन में ले जाने के लिए एक फोर्स चाहिए, हम खुद अप्लाई कर रहे हैं डिफॉर्मिंग फोर्स. लेकिन अगर वो बॉडी इलास्टिक बॉडी होगा तो मैं जो ए से बी चेंज किया था, बी से एक खुद ब खुद चेंज हो जाएगा. अगर कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? तो इलास्टिक ऑब्जेक्ट होगा. तो समझ में आया कि नहीं? तो ए से बी ले जाने में डिफॉर्मिंग फोर्स, बी से ए ले आने में कौन सा फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स. ओके, सी अगेन वी हैव, दिस इज द बेसिक टर्म स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. वी विल डिस्कस इट वेरी केयरफुली. ओके, so stress and strain, these are the two basic terms that we are going to discuss in this chapter. So what do you mean by stress? I have already told you the concept of restoring force. Let a object be there, by applying deforming force the shape of the object will be like this, it will be deformed, right? So if it is an elastic object, it will again come back to its initial position. तो ये जो अपना इनिशियल से फाइनल पोजीशन जो लेके गया हूँ मैं खुद, ये फोर्स को हम क्या बोलेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स. जो ऑब्जेक्ट ने खुद अपने आप का पोजीशन, इनिशियल पोजीशन गेन करने के लिए जो फोर्स अप्लाई किया है उसको हम क्या बोलेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स. तो सी, the term that is stress is known as what? There is a formula, restoring force per
यूनिट एरिया। देखो यहाँ पे मैं डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया F, लेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बी A, ठीक है। देखो इसमें अगर जब मैं फोर्स अप्लाई किया हूँ ना, डिफॉर्मिंग फोर्स, देखो अगर इसका एरिया बड़ा है तो इसका लेंथ छोटा है, अगर मैं लेंथ वाइज इसको बढ़ा दूंगा तो देखो इसका एरिया छोटा हो गया कि नहीं, छोटा हो गया कि नहीं, डेफिनेटली। देखो एक ऑब्जेक्ट है, इसका लेंथ बड़ा है, ब्रेड्थ छोटा है, अगर मैं इसका ब्रेड्थ बड़ा करना चाहता हूँ तो इसका लेंथ में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कि नहीं, है कि नहीं। ये दोनों का एरिया सेम है, इसमें लेंथ बड़ा था, ब्रेड्थ छोटा था, ये दोनों का एरिया सेम है बोला ना, मतलब इसका ब्रेड्थ अगर बड़ा है तो इसका लेंथ को छोटा होना पड़ेगा, बिकॉज द एरिया हैज़ टू बी सेम, है कि नहीं। सिमिलरली सी, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा था, इसका लेंथ छोटा था, मैं अगर लेंथ को बढ़ा दूंगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सो लेट द डिफॉर्म्ड एरिया, दैट मीन्स द चेंज्ड एरिया बी व्हाट, A डैश, एंड वी विल डिनोट द रिस्टोरिंग फोर्स एज FR। F means what, deforming force. A is the area of cross section before changing. After the application of deforming force, the length of the object will be changed and the area will be also changed. That changed area be A dash, and the force which is responsible for changing or coming back to its initial position is known as what, restoring force। देखो यहाँ पे स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रिस्टोरिंग फोर्स को हम कैसे लिखे, FR बाय एरिया। हम कौन सा एरिया लेंगे, ये वाला एरिया या ये वाला एरिया, जो एरिया चेंज हो चुका है, दैट मीन्स A डैश। नाउ सी व्हाट विल बी द यूनिट, यूनिट विल बी व्हाट, फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, और हम क्या बोलते हैं, पास्कल। क्या बोलते हैं, पास्कल। सो if we have already started the stress, we will complete the stress now। see, stress हमको पता चल गया। now there are 3 type of stress। कौन कौन सा, longitudinal stress, टेंजेंशियल स्ट्रेस, और एक क्या है, वॉल्यूमेट्रिक stress। So there are 3 type of stress. Already we know what is the meaning of stress. Stress means what, restoring force per unit area. What is the unit, Newton per meter square। What will be the dimensional formula then, dimensional formula क्या होगा, फोर्स का क्या है, M1 L1 T-2, एरिया का क्या है, L2 M1 L1 T-2 L-2, that means what, M1 L-1 T-2। so this is the what, dimensional formula of what, stress। ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है और किसका है, याद करो थोड़ा, ये है प्रेशर का। किसका है, प्रेशर का। दैट मीन्स द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर एंड स्ट्रेस इज सेम, द SI यूनिट ऑल्सो सेम फॉर व्हाट, प्रेशर एंड स्ट्रेस, बट देर इज ए डिफरेंट मीनिंग। देखो अगर एक ही क्वांटिटी का 2 नाम है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ क्या है, डिफरेंस तो है कुछ ना कुछ, तो उसी को ही स्ट्रेस बोलेंगे और उसी को ही प्रेशर बोलेंगे, इट इज़ नॉट राइट, राइट। प्रेशर इज ऑल अबाउट, और प्रेशर इज रिलेटेड टू डिफॉर्मिंग फोर्स, बट स्ट्रेस इज रिलेटेड टू रिस्टोरिंग फोर्स, है कि नहीं। जो हम बाहर से अप्लाई किए हैं वो डिफॉर्मिंग फोर्स है, उसी के रिलेटेड क्या है, प्रेशर है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट ने खुद अप्लाई किया है अपने आप में, वो कौन सा फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है, उसी के रिलेटेड क्या है हमारा, स्ट्रेस। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स सेम नहीं है तो प्रेशर और स्ट्रेस भी क्या है, सेम नहीं है। समझ में आया कि नहीं। नाउ सी अगेन, देयर आर 3 टाइप ऑफ स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड volumetric stress। all the type of stress possesses same unit, that means Pascal for it also Pascal। तीनों का फॉर्मूला भी सेम है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसके लिए भी रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसके लिए भी रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑल्सो सेम, बट
what is the difference? Longitudinal. Longitudinal means something related to length or line. Longitudinal मतलब क्या है? Something related to length or line. Similarly, tangential means it will bend or it is something related to angle. Volumetric means something related to volume. Related to volume. See, longitudinal. Longitudinal में क्या होगा? Let's suppose one object is there. If I will apply the force in this direction, the length of the object will be changed. Let's suppose ये L था. Let's suppose अब ये क्या हो गया है? L plus डेल्टा L हो गया. बढ़ गया कि नहीं? घट भी सकता है. अगर हम फोर्स को इस डायरेक्शन पे अप्लाई करते तो इट विल बी लाइक दिस और द एरिया विल बी समहाउ ग्रेटर देन प्रीवियस एंड द एरिया विल बी चेंज्ड. सो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है कि नहीं, ये स्ट्रेस को हम अप्लाई करेंगे सिर्फ किसको चेंज करने के लिए? लेंथ को चेंज करने के लिए. वी विल नॉट बॉदर अबाउट द चेंज इन एरिया, वी विल ओनली बॉदर अबाउट व्हाट? द चेंज इन लेंथ while applying the longitudinal stress. Similarly, for the tangential stress we will see let's suppose this is an object. I will apply the force on this surface. अगर मैं इसको फोर्स ऐसे अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे the shape of the object will be like this. Initially it was straight, but now after applying tangential stress it will become like this. So some angle of bending will be there. वही फोर्स को मैं इधर अप्लाई किया तो ये लेंथ में चेंज आया. वही फोर्स को मैं अलग अलग ओरिएंटेशन में अलग अलग जगह पे अगर अप्लाई करूँगा तो इसका शेप चेंज हुआ. देखो इसका लेंथ में चेंज हुआ क्या? एरिया में चेंज हुआ क्या? नो. द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल चेंज और द ऑब्जेक्ट विल somehow it will bend through an angle theta. So this type of stress is known as what? Tangential stress. But again, whenever you are going to discuss or whenever you are going to deal with this volumetric stress, let's suppose an object is there. If I will apply force in all the direction, the volume of the object will shrink and it will become like this. Initially this was the stop and finally it was the stop after applying the volumetric stress. See, previously the volume was V, now it becomes V minus delta B. V minus delta B. So somehow the volume of the object will change. And for what? The volume will change after applying the volumetric stress. बंद कर दो.